So today we have some set of differential equations of first order and first degree. Those are reducible to linear form. Differential equations reducible to linear form. Okay? Hey, listen. So first we have taken the equations of first order and first degree, right? First order first degree का equation हम लोगों ने लिया हुआ है. किन किन के लिए equations के लिए solution exist कर रहा है, that we are in the process to look into. So today I have a set of equation known as Bernoulli equation. And the general form of the equation is that dy upon dx plus py is equal to q multiplied by y power n. Right? Is it okay? So this form of equation is known as Bernoulli equation. While in linear equation we are having dy upon dx plus py is equal to q. Of course, this equation is not linear and this equation is linear. Because the power of y is n. So the equation is not a linear. Why? क्योंकि linear की definition क्या है? कि dependent variable हो और derivative term. इनकी power कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. Only then the equation is called a linear if the derivatives and the dependent variables are having power 1 after all type of removal of radical like. So is there any substitution or transformation so that I may transform this equation to some form of linear equation? Is it okay? तो इसमें हमको करना क्या है कि y raised to the power n है, y raised to the power minus n से पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो देखिए होता क्या है. This becomes y power minus n dy upon dx plus p. Now it will be y power 1 minus n, y power 1 minus n. This will be equal to q. And of course, as usual, p and q are functions of x. ठीक है? p और q जो फंक्शन है मेरे इस पर डिपेंड कर रहे हैं जो मेरा इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, बताया है पहले. अब क्या करो, ये जो पार्ट है y पावर 1 माइनस n, इसको किसी अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. कैसे करते हैं? So you put y power 1 minus n is equal to t. Of course, y is a function of x. Then obviously t is also a function of x. अरे भैया y x का फंक्शन है ना, तो y की पावर 1 माइनस n को क्या रखा? t रखा. तो जब y x का फंक्शन है तो t भी क्या होगा? x का फंक्शन हुआ ना. तो दोनों साइड का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ. कर दूँ? चलिए, ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. क्या है आपके पास? y पावर 1 माइनस n. अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. तो क्या होगा? क्या बनेगा? हाँ, 1 माइनस n y पावर 1 माइनस n माइनस 1. 1 से 1 कैंसिल हो गया. So this is y power minus n, and of course for y it will be dy upon dx, and on the right hand side it will be dt upon dx.
Does it okay? So from here I have an expression for y power minus n. So dy upon dx is equal to 1 upon 1 minus n into dt upon dx. Right? Now substitute for this y power minus n dy upon dx. I shall have one upon 1 minus n dt upon dx plus pt is equal to q. Now this is a linear differential equation with t as dependent variable and x as a independent variable. So this is a linear equation. This equation is linear with t as dependent variable and x as independent variable. Is it okay? तो मैंने क्या किया है, ये जो पहले मुझे बर्नौली इक्वेशन दी थी जिसमें क्या था पी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर एन. एंड ऑफ कोर्स एन की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 ले ली तो लीनियर बन जाएगी. हमको तो चाहिए जो इक्वेशन लीनियर नहीं है, ठीक है ना. तो कंडीशन है इसमें कि एन की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी. यहाँ पर भी 1 माइनस एन से डिवाइड किया है. Of course n should not be equal to 1. ये वो कंडीशन है यहाँ पर, n is not equal to 1. ध्यान देने वाली बात यूजुअल है. तो इस इक्वेशन में जो पहले इक्वेशन मेरे पास लीनियर नहीं है वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बोलो भाई, x है. उस इक्वेशन को मैंने चेंज कर लिया, लीनियर बना ली. अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बोलो, t है ना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है. लीनियर को कैसे सॉल्व करना मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में. तो अब क्या करो, ये जो लीनियर इक्वेशन बनी है इसका सॉल्यूशन करो. सॉल्यूशन किसके लिए आएगा, t के लिए आएगा. और t में और y में रिलेशनशिप है, तो t की जगह क्या पुट कर दो फिर, y पावर 1 माइनस n. तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो किसमें सॉल्यूशन होगा, y में और x. तो इस तरीके से अगर कोई बर्नौली इक्वेशन का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है तो उस एग्जाम्पल में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करो, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को y से t में चेंज करो, लीनियर बनेगी. लीनियर का सॉल्यूशन मैंने बताया है कैसे करना है. उसका सॉल्यूशन निकालो लीनियर का, और फिर जो सॉल्यूशन आए उसमें t को फिर से y में ट्रांसफॉर्म कर दो. तो जो ओरिजिनल इक्वेशन मुझे दे रखी है बर्नौली इक्वेशन, उसका मुझको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है ना. सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा. ठीक है ना. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लेट मी गिव वन एग्जांपल. Write down dy upon dx minus x power 3 y power 3 plus xy is equal to 0. This is the equation. Now let me identify it as Bernoulli equation. How? I will write down it as dy upon dx plus xy is equal to x power 3 into y power 3. You know what is the value of p here? P of x
is nothing but equal to x and q of x is equal to x power 3. p x है और q क्या है? x power 3. तो जो बर्नौली इक्वेशन मैंने बताई है उससे कंपेयर किया मैंने, तो p भी मिला और q भी मिला. अब वहां पे क्या बोला हुआ मैंने, क्या करना है? y की पावर n से क्या किया था? डिवाइड कर देते ना इक्वेशन को. n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है ना. जो वहां पर n लिया हुआ है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 3 है. तो क्या करूँ? y की पावर 3 से क्या कर दूँ? डिवाइड कर देता हूँ. तो जब डिवाइड किया तो क्या आया? y पावर -3 dy अपॉन dx प्लस x y पावर -2. y इंटू y पावर -3 क्या हो गया? है ना. चलिए, एंड दिस इज इक्वल टू x पावर 3. अब क्या करना है उसको? ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको क्या करना है? दूसरे वेरिएबल t में ट्रांसफॉर्म करना है. तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? y की पावर 1 माइनस है ना. तो उसको क्या पुट कर दूं? y की पावर -2 को क्या पुट कर दूं? t पुट कर दूं ना. तो पुट y पावर -2 इज इक्वल टू t. वहां पर क्या लिया था? y पावर 1 माइनस n को क्या लिया था? t. तो ये y पावर 1 माइनस 3 y पावर -2 यही है ना, सेम टर्म है. कंपेयर करो ना, आइडेंटिफाई करो. सोच रहे हो? अब इसको फिर से क्या करना? y भी x का फंक्शन, t भी x का फंक्शन. इसको क्या करना? डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. क्या बनेगा? y पावर -2. y पावर -2 का डिफरेंशिएशन करना है ना. -2 इंटू y पावर -3 -2 -1. ओके. और y के लिए क्या हो गया? dx. This is dy by dx and finally this is equal to dt upon dx. तो ये जो y पावर -3 है इंटू dy अपॉन dx है, इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. क्या करूँगा? -1/2 dt अपॉन dx. So from here y power -3 into dy by dx is equal to -1/2 dt upon dx. कहाँ पुट करना? इसमें पुट कर दो. क्या आएगा? -1/2 dt upon dx plus xt is equal to x power 3. Is it okay? Clear? तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? dt upon dx minus 2xt is equal to -2 x power. हो जाएगा? Is it okay? Clear to all of you? बोलो. Yes sir. अब ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? लीनियर हुई ना. इसमें लीनियर है t में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो मैंने बता रखा लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व करना. तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, सॉल्यूशन करोगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसमें t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? y पावर -2. तो फाइनली यू विल हैव द सॉल्यूशन. इज इट ओके? सो आई लीव the remaining exercise for you. Okay, so and complete this topic. Right.